Welcome to another captivating episode of Over a Coffee with Himanshu. Today, we have a remarkable guest with us, Mr. Utkarsh Kumar. Now, Utkarsh is not only a financial advisor, but a dedicated educator and the founder of Neve. Neve is a groundbreaking education initiative that's committed to bringing essential skills into the Indian classrooms that are often overlooked. Utkarsh has a true knack of making complicated financial concepts simple and easy to understand. Now, we are genuinely thrilled to have him with us today to share his wealth of experience and knowledge. So, without any further delay, let's delve right into our conversation with the inspiring Utkarsh Kumar. Okay, so Mr. Utkarsh, welcome to Over a Coffee with Himanshu. How are you feeling today? Himanshu, thank you so much for inviting me. This will be, I hope, a very enriching conversation, and I sincerely hope that your viewers will have a lot of takeaways from it and possibly some self-realizations too. Right. So, while I understand what you do, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लैंग्वेज में simplifying it to the best of your capabilities that you always do, please explain to our audience what you exactly do. So, Himanshu, I am the founder of a company called Neve Learning Labs. So, this is a company that works with schools, NGOs, corporates, and even on a B2C level with people who are interested in enhancing their financial literacy. And we also work with schools in the areas of teacher training, right from primary to the senior grades. And we are currently also working with NGOs so that we reach out to underprivileged kids or sections of society that may not have traditionally gotten that sort of a financial education or things like that. So we started in 2020. And that was the height of the pandemic. But it has been a learning experience for me personally, and there have been many realizations on the way which have been profound. So, a Marwadi who started as an engineer, how did you get into the training aspect of this particular business, and that to financial training? I'm like, there's no link between an engineer and a financial expert who gives training to people. Yes, that is correct. But there is a very deep relation between a Marwadi and a finance. Okay, so that connection is what got me here eventually. But see, I have always been. My family is a business family, like all Marwadis mostly. So I was always in that environment of business and how it is being done. Going to my father's business in summer vacations to just understand and take that experience. That is, I think, typical household, Marwadi household में ये होता ही होता है. So वहाँ से ये journey start हुई, and engineering was, it just happened. Like mostly होता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा भाई engineering कर लो. So it happened like that. But after engineering, I was placed in an investment bank, a French investment bank called Société Générale. So that is where I got my first real taste of finance. That watching it from close quarters कि क्या होता है, कैसे चलती हैं चीजें. And हमें बाहर से जितना simple दिखता है ये उतना simple है नहीं. अगर आप इसके nitty-gritties में जाओ या investment banking में जाओ, तो it is a specialized concept. So वहाँ से I had a very supportive team, a very supportive manager when I started my career. So they pushed me to more into this field. I was into risk. So I was into credit risk. I was working as a credit risk analyst. So वहाँ से I did my FRM, which is a certification provided for risk managers. तो वहाँ से वो जो एक link है वो बनता गया. And then there was a time when I finally thought कि why not do it at my own level. ठीक है, जॉब एक चीज है, वो एक्सपीरियंस भी ले लिया. लेट अस टेक अ टेस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो
वहां से स्टार्ट था. वी स्टार्टेड नीव विद अ थोड़ा सा डिफरेंट एम. इट वाज फॉर वर्किंग विद प्राइमरी स्टूडेंट्स एंड टीचर ट्रेनिंग, बट धीरे धीरे इट मूव्ड इनटू दिस financial literacy wala thing also. So now this also is a very crucial part of what NEEV offers. Right, right. And 2020, right when COVID started, how difficult was this to start a business at that time? And like everybody was struggling when it comes to their health, their finances. Of course, the time was right. You know, everybody was struggling for finances, but again, for people's priority was their health. So, how difficult was it to start this business? See, it was in the works from 2019, which was a pre-COVID world. So it was challenging because suddenly everything has changed. सब कुछ स्क्रीन के सामने हो रहा है. You are not going to sessions, you're not attending sessions, you're not interacting with kids especially. So I still maintain that भले ही कितनों का कुछ भी नुकसान हुआ हो, but बच्चों का सबसे ज्यादा हुआ है. Because they've lost 2 good years of studies in school. And I, for one, believe कि adults के लिए ठीक है, but बच्चों के लिए online learning is not up to the mark, जो एक physical setup में होता है. So, it was a big shift because we had to suddenly get into online platforms like Zoom and Google Meet and how to handle it all. And the most important part, आप लोगों का attention कैसे grab कर सकते हो उसमें. Because people will be sitting in the meeting and एक दूसरा window खोल रखा है, वहां पे कुछ और चल रहा है उनका. So, you know, all of those factors were there, but it was also a positive क्योंकि हमारी strategy जो थी वो इतना set in stone नहीं थी कि we could fluidly adapt to that thought process कि अब online ही करना है, let us start with it, let us adapt it. So वहां से स्टार्ट हुआ एंड लाइक यू सेड लोगों को हेल्थ की बहुत ये थी, बट इफ यू लुक एट इट क्लोजली हेल्थ के साथ वेल्थ की प्रॉब्लम भी होने लगी थी लोगों को, बिकॉज एवरीथिंग वाज कॉस्टली. लोगों की इनकम्स रुक गई, लॉस ऑफ जॉब्स, यू नो, लॉस ऑफ पे, बिजनेसेस बंद है. So I think that was a time when people also realized that okay, health तो obviously priority है because COVID है, but your financial health is also very necessary to, you know, लोग जहां उस पर ध्यान नहीं देते थे, सडनली लोगों का ध्यान गया कि अब पैसा कहां से आएगा, क्या मेरे पास इतनी सेविंग्स है, क्या एक इमरजेंसी फंड है, क्या कहां से करूंगा. सो यू नो that also played a part where people got a bit more aware, organizations got a bit more aware. Like हमने schools के साथ सेशन किए हैं जहां पे उन्होंने टीचर्स के लिए सेशन कराए कि financial literacy for teachers या women. तो you know, at an organization level also there is a lot of awareness now that, you know, something like this is needed, and that happened primarily due to COVID. Okay. One question or doubt that I have. So जब भी कोई business start करता है, there's a lot of research that anybody does. Yeah. आपने किस टाइप की रिसर्च करी एंड कैसे आपने अपना सोर्सेज इकट्ठा करे टू गेट दैट इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च? Because it was COVID, you couldn't go anywhere. And for a business like yours, to give a training, you need to understand exactly training की need कहाँ पे है. Right? So how did you do your research is what I want to understand. So Himanshu, the research started in 2019. Okay. 2020 was when we registered our company. So उसके 6-7 महीने पहले से it was in the works. So it involved going to a lot of states. I knew that if I had to do something like this, अपने comfort zone से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा. So we went to places like Jharkhand, we went to places like Arunachal, just to gather experience that schools कैसे चल रहे हैं, बच्चों के साथ क्या हो रहा है. This was obviously pre-COVID 2019. So वहां से बहुत insights भी मिले और बहुत motivation भी मिला कि you know, something has to be done. We went to government schools, we went to private schools, गांव में, शहर में, so called top class schools जिनको हम कहते हैं, वहां भी. So we learned good things, we learned bad things, and by bad I mean जहां पे हम कुछ contribute कर सकते हैं. So we focused on those things कि अगर हम इनको एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम बना के देंगे या हम इनके लिए कुछ करेंगे तो ये कैसे बेनिफिट होंगे, मतलब इनको
वैल्यू एडिशन कैसे मिलेगा, ऑलरेडी जो करिकुलम करा रहे हैं वो सारी चीजें. So there's a story very interesting which I want to share, and that is I call that the seed of Neve. जो Neve का मतलब ही फाउंडेशन होता है ना, तो वो फाउंडेशन वहीं से आया है. So 2019 में ही I was visiting झारखंड. तो वहाँ पे गवर्नमेंट को हमने एक प्रेजेंटेशन दी थी. We were talking about getting into a potential collaboration, a pilot project. So they told us that go to any school and give a reference to of the officer and they'll let you enter and you can just interact with the teachers और आप स्कूल में क्या हो रहा है सब देख सकते हैं. So एक छोटी सी misunderstanding हो गई थी where the principal of the school that I went to thought that मैं कोई सरकारी अफसर हूँ. So you know what happens अगर कोई सरकारी अफसर के इंस्पेक्शन के लिए आता है, everybody is attentive, all the teachers are doing everything regularly. तो मतलब वो माहौल बदल गया. तो I realized a while later कि भाई ये कुछ और समझ बैठे हैं, but ठीक है, go with the flow वाला था. So it was me and one of my colleagues. We both were there and we were going corridor था, हम corridor से जा रहे थे with the principal. So we were randomly entering classes just to see कैसा हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं. So first of all, I'll tell you a very good thing about that school. So that school was in Ranchi. Right. And would you believe if I tell you that school had 70% female students? Oh, is it? And 30% male students. We have this perception ना कि छोटे गांव में जाओ लड़कियां नहीं पढ़ती हैं, ये और होता भी है ऐसा नहीं. But that was an eye opener. I was surprised. मेरे सामने पेरेंट्स आए हैं छोटी छोटी बच्चियों को लेके जो हाथ जोड़ के प्रिंसिपल को बोल रहे हैं आप इसको प्लीज एडमिशन दे दो. मतलब द लेवल ऑफ अवेयरनेस इन रूरल पेरेंट्स, आई वाज ब्लोन अवे. और वो पेरेंट मतलब उसको देख के लग रहा है कि उसके पास शायद इतने साधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है, बट वो डेस्परेशन दिख रही है कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, अपनी बेटी को पढ़ाना है. और दैट वाज अ टाइम जब मतलब उतना एक्सपोजर नहीं था जितना आज है. आज ऑब्वियसली ज्यादा है, 4 साल पहले की बात है. सो वी वेंट टू वन क्लास एंड हमने टीचर की परमिशन से बोला कि हम 15 मिनट की एक क्लास लेना चाहते हैं आपके बच्चों की. सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि एक लेते हैं, लेट अस सी क्या रिस्पॉन्स मिलता है, डू वी रेजोनेट विद किड्स. क्योंकि हम अर्बन एरिया से हैं कहीं ना कहीं, ऑल्दो मेरी पैदाइश और वो सब छोटी जगहों पे हुई है, बट फिर भी. सो वी वेंट, हमने वो 15 मिनट का एक छोटे से टॉपिक का सेशन लिया एंड वी गॉट वेरी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स. हमें बड़ा मजा आया. बट व्हेन वी केम आउट, सो एक छोटी सी क्लास 4 की बात है, तो क्लास 4 की वो लड़की दौड़ती भी आई एंड मेरी कॉलीग के पैर पकड़कर रोने लगी. एंड ऑब्वियसली प्रिंसिपल भी घबरा जाता है कि ये सरकारी इंस्पेक्शन के लिए है, भैया अब नौकरी जाएगी या क्या होगा. सो वी वर शॉक्ड, क्या हुआ. सो वी sat there, we calmed the kid down, we asked क्या हुआ बेटा. So she said something which has stuck with me and which motivates me अभी भी, कि आप हमें और क्यों नहीं पढ़ाते हो, आपके जितना अच्छा यहाँ पे नहीं पढ़ाते. So a kid saying that while crying, and उस टाइम that was the moment जहाँ पे नीव एक फ्लीटिंग आइडिया से इसको कॉन्क्रीट करना पड़ेगा. सो दिस इज नॉट टू से कि वहां के टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव उनको राइट ट्रेनिंग नहीं मिली है टू कि बच्चों तक पहुंचना कैसे, आज की जरूरतें क्या हैं, या आप कैसे और ज्यादा एम्पैथेटिक हो सकते हो बच्चों के लिए, आप कैसे उनको और सिखा सकते हो. तो टीचर की गलती भी नहीं है इसमें, बट दैट वाज एन आई ओपनर. दैट टोल्ड मी कि भाई अब इसमें हाथ डालते हैं, देखा जाएगा बाकी जो. सो हिमांशु, समटाइम्स ना रिसर्च इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बट मोटिवेशन इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट, एंड you will understand that very well, being from a background where marketing और लोगों से मिलना.
सो बहुत सारी चीजें ना रिसर्च की जगह मोटिवेशन से हो जाती है. अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो थोड़ा कम रिसर्च भी चल जाता है. दैट इज माई एक्सपीरियंस. सो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन. वी बिलीव दैट वी कुड मेक अ डिफरेंस एंड कुछ ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए which actually motivated us. Okay, so from that class in Jharkhand, teaching probably students of class 8th to your first session, a professional session, आपको कितना टाइम लगा, क्या challenges आए, and how did you overcome that? So, my colleague I was talking about, she's already a teacher. She's a BLEd and उनका काफी experience है. So, as me first session मिलने में बहुत ज़्यादा time नहीं मिला because she would get sessions eventually क्योंकि उनका experience है. She was already a trainer in some capacity. She was working with some schools already. But finance की अगर मैं बात करूँ, so that took almost 1 year. And that took almost 1 year because it was an afterthought. Starting में ऐसा नहीं था कि starting से ही नीव में finance का element था. But जब नीव ने पेस पिक किया, so एक क्वेश्चन मेरे अंदर है कि ठीक है, नीव इज माय बेबी, इट इज डूइंग वेल या हम स्कूल्स में, बट मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? इवन दो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, बट आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम नॉट अ बीएड या मेरे पास कोई ट्रेनिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है. सो वो होता है ना, फिर हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हैं कि मेरे अंदर क्या स्किल है जो मैं दूसरों को दे सकता हूँ. So the only thing I knew was either IT, जिससे मैंने इंजीनियरिंग की, या फाइनेंस. So जब मैं इन दोनों को देखता हूँ तो obviously finance is something I was well versed in, I was more confident and मेरे आसपास के लोगों को भी एक वो कीड़ा था ना, सबको थोड़ा कुछ बताते रहना, सिखाते रहना, कोई कुछ पूछता है, फ्रेंड्स, फैमिली. So that is when I thought कि यहीं से स्टार्ट करते हैं. And almost after 1 year of Neve registering, that was 2020 में register हुआ, तो 2021 में I did my first session, which was for teachers of a prominent school in Delhi NCR. So that again was a very different experience because it was focused on women's financial literacy. तो वो सेशन किया, वहां से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ आफ्टर द रिस्पॉन्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स की यार आई कैन डू इट, ये अपने हाथ की चीज है एंड दिस कैन बी डन. Right. How was that experience? That first session, a professional one, that too for teachers. So the first session that I did, now the irony will strike, but जिस स्कूल से मैं पास आउट हुआ हूँ उसी स्कूल की टीचर्स के लिए था वो सेशन. नाउ if you want the proper definition of life coming a full circle, this is it. जिन टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, जिन स्कूल के टीचर्स ने मुझे पढ़ाया, आज मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ. So that and being my first session, so that was an achievement in itself for me. Personal level पे although सारी टीचर्स वो नहीं थी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, बट एक दो टीचर्स थी उनमें. So a very proud moment for me personally. एंड मतलब पैसा कमाना एक चीज है, वो सारी चीजें साइड रख के जस्ट अपने टीचर्स को ही सिखाना. एंड यू नो देन सीइंग इन देयर आईज दैट यू नो दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट. सो दैट वाज सैटिस्फैक्शन ऑफ अ होल न्यू काइंड. एक उनको मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस का एक छोटा सा कुछ बता रहा था. सो आई took an example of a certain HDFC का XYZ health insurance. And मैंने उनको एक चीज बताई कि आपके पास ये हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी के पास है, इसमें एक प्रोविजन है जिससे आप ईयरली 10,000 रुपीज और सेव कर सकते हैं. एंड 2 of those participants had the same health plan. And they were like, thank you sir, ये हमें पता ही नहीं था, आपने हमारे 10,000 रुपए बचवा दिए. So मेरा मतलब मैंने उस मोटिव से नहीं कहता, मैं उनको अवेयर कर रहा था, बट यू नेवर नो कि वो किस तरीके से किसको बेनिफिट कर रहा है. तो उनको वो चीज पता चल गई ना, स्ट्रेट अवे दे हैव सेविंग्स ऑफ 10,000 per month per year from that 2 minutes of knowledge. So that was personally very satisfying, especially females के लिए करना.
एंड वो अवेयरनेस उनमें कि उनके पैसे बच रहे हैं, उनको वो बेनिफिट मिल रहा है. सो यू नो ऑल ऑफ दैट ऑब्वियसली यार कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल एलिमेंट तो होता ही है. यू टेक मनी एंड ठीक है, बट द बेस्ट रिवॉर्ड इज जब वो पार्टिसिपेंट्स आपको या तो एंड में आके बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ यू आई स्टार्टेड डूइंग दिस, आई स्टार्टेड मैनेजिंग माई फाइनेंसेस, आई स्टार्टिंग लर्निंग अबाउट फाइनेंसेस, मैंने इतने पैसे बचाना स्टार्ट कर दिया या मैंने ये हैबिट इंप्रूव कर दी. सो ऑल ऑफ दोज यू नो दे आर रिवॉर्ड्स इन देमसेल्व्स. Okay, so Utkarsh, Neve is a training provider where you head the system. I want to understand what all basically verticals do you deal in? What all sort of trainings do you provide? So the first and foremost focus area right now is related to parenting. So I'll just take 1 minute and just elaborate it a bit for the viewers. आज के दिन हर पेरेंट, हम मतलब वी हैव बीन अराउंड एंड वी हम खुद भी, तो उनके अंदर ना एक रेस है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे, he should have these skills, that skills, X, Y, Z, and you know the list is unending. कुछ टाइम पहले कोडिंग की हवा चली थी, व्हाइट हैट जूनियर एंड बाइजूस एट द पीक. ठीक है, आज वो हवा बहुत शांत सी है. ठीक है, कोडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं बच्चे, बट वो जो एक यूफोरिया आया था वो दैट इज सबसाइडेड समवेयर. सो एवरी पेरेंट आई हैव मेट ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग्स, दे हैव द सेम एंजाइटी कि हम अपने बच्चे को और क्या सिखाएं और क्या कराएं. अब मैं उनको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आपका बच्चा छोटा सा, उसका दिमाग अभी छोटा है, डेवलप हो रहा है, आप उसको क्या क्या कितना सिखाना चाहते हो? वो 6-7 घंटे के लिए स्कूल जाता है दिन में, उसको 8 घंटे की नींद चाहिए, उसको 2-3 घंटे नॉर्मल चाहिए वेयर ही और शी इज वेरी फ्री. उसको आप स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करा देते हो, उसको ये स्पोर्ट्स में जाना है, उसको ये गिटार सीखना है, यू नो, एंड दैट इज ओके. वो आपका बच्चा है, बट यू नो वो एक हो गया है कि हम अपने बच्चे को क्या क्या ना सिखा दें. एंड अल्टीमेटली क्यों करते हैं पेरेंट? अगर हम एक बिल्कुल रॉ फॉर्म में देखें, ताकि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो, नेम, फेम, मनी, चौथी चीज नहीं है. आपने अपने बच्चे को कोडिंग सिखाई सो दैट वो बड़ा होके एक मतलब आईटी कंपनी खोल ले या एंटरप्रेन्योर कुछ भी बन जाए. उसको एक स्किल तो हमेशा चाहिए. पैसा कमाना उसको आपने सिखा दिया, क्या उसको मैनेज करना, रखना और ग्रो करना सिखाया है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क एनी पेरेंट. कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसको कोडिंग की क्लासेस हैं, इसकी क्लासेस हैं, उसकी, वो घंटों घंटों कर रहा है, वीकेंड्स पे कर रहा है, आप उनके लिए इतनी एक्सेसरीज खरीदते हो, रिसोर्सेज खरीदते हो, आपने पैसा कमाना सिखा दिया, अब आगे का कौन सिखाएगा? दैट इज हाफ द गेम ना. उसको बचाना कैसे है, स्पेंड कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, वो हैबिट्स के बारे में कोई बात नहीं. मतलब दैट इज एन आयरनी कि पैसा कमाने के लिए सब बात कर रहे हैं कि कोडिंग सिखा दी, इसके बारे में कोई नहीं कर रहा कि उनके अंदर वो हैबिट्स कैसे डालनी. सो हम जो ट्रेनिंग्स लेते हैं, राइट नाउ वी वर डूइंग इट B2B, बट जो रिस्पॉन्स हमें मिला है दैट वाज सो एनकरेजिंग दैट वी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पेरेंट्स जिन्होंने कहा आप एड हॉक हमें सेशन ले लो. सो वी टुक 2 or 3 प्राइवेट सेशंस आल्सो फॉर अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स. सो नाउ वी आर टेकिंग इट ऑनलाइन वेयर it is a very simple फंडा कि हम पेरेंट की प्लेट पे बहुत है, उसको कमाना है, उसको मैनेज करना है, बच्चे, घर. वी आर नॉट एडिंग टू योर प्लेट. हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको अपने बच्चे के साथ 2 घंटे बैठना है तो आप उसको पैसे के बारे में सिखा सकते हो. आपकी डेली एक्टिविटीज जो होती है, जो आप डेली इंटरैक्ट करते हो बच्चों के साथ, आप उससे कैसे उनके अंदर वो हैबिट्स डाल सकते हो. हैबिट्स लाइक पेशेंस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन, हैबिट्स लाइक स्पेंड करना है तो वो कैसे करना है, कैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए खुद को यू नो ट्यून करना है. तो बच्चों को वो सब चीजें डेली रोजमर्रा की चीजों में सिखा सकते हो. सो दैट इज आवर फोकस कि हम पेरेंट के ऊपर एक बर्डन नहीं डाल रहे हैं, हम पेरेंट्स की हैबिट्स को थोड़ा ट्वीक कर रहे हैं कि वो अपने डेली कॉन्वर्सेशन में ही
बच्चों को ऐसी चीजें सिखा देंगे कि बच्चे को कमाना तो आ ही जाएगा, वो तो हो ही रहा है, बट उसको मैनेज करना चाहिए, विच इज आप कमा के पूरा उड़ा दो तो आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप कम कमा के भी उसको मैनेज कर लो प्रॉपरली, देन यू आर रिच. सो दैट वाज द फिलॉसफी. So this was about parenting वाला aspect of financial literacy. So इसके अलावा there is obviously women की हमने बात की. So financial literacy as a tool for women empowerment. ये हमें पता है, बहुत सर्वेज हैं that women lag behind in financial knowledge awareness. आजकल फिर भी है, बहुत improve हुआ है, but still that confidence is lacking somewhere. The new investments and overall financial knowledge की एक थोड़ी सी कमी है. So उसको प्लग करने के लिए कैसे women को empower करें, confident करें about managing their finances. So that is another vertical जहाँ पे हम schools के साथ काम कर रहे हैं, schools के teachers के साथ. We are working with NGOs for women entrepreneurs. We are working with a lot of private groups जो women के लिए ऐसे sessions चाहते हैं. Plus a lot of one-to-one sessions also happen जहाँ पे they reach out to me that with a very specific issue, and then we sort that out together. So this is the second aspect related to financial literacy, and the third one that is more to do with children. कि बच्चों के सेशन लेना ऑन फाइनेंस. अगेन जब मैं बच्चे बोलता हूँ तो दे आर मोस्टली प्राइमरी स्कूल किड्स, एंड हम उनको ये नहीं बताते हैं कि भैया ये क्रेडिट कार्ड होता है, ये डेबिट कार्ड होता है, ये एफडी होते हैं. उनको वो बाद में भी सीख जाए. वी फोकस ऑन बिल्डिंग हैबिट्स ऑफ वेल्थ एज वी कॉल देम, व्हिच इंक्लूड्स पेशेंस, रेजिलियंस, परसिस्टेंस. तो ये आपके पैसे के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट सर्व्स अ डुअल पर्पस समवेयर. तो दैट इज मोर इनटू स्किल बिल्डिंग वाला पार्ट. अगर हम सीनियर क्लासेस के लिए कर रहे हैं, देन वी टच ऑन प्रॉपर फाइनेंस की चीजें. या अगर कॉलेज गोअर्स के लिए कर रहे हैं तो देन इट इज मोर अबाउट इंटर्नशिप्स या फ्रीलांसिंग एंड वैसी चीजों का एक्सपोजर देना. But mostly we do it with primary kids because वो habit building बहुत important है. And जैसे हम parents के लिए जो चीज कर रहे हैं, एक उसी का एक substitute which we are doing. And nowadays schools are very aware. मतलब वो ढूंढते हैं कि कौन ऐसा provide कर सकता है या हमारे बच्चे और smart कैसे बने. So that has been particularly rewarding also. So all these three verticals that we talked about, इन तीनों की नीड बहुत रियल है, बहुत एसेंशियल है, एंड देयर इज अ डेफिनेट स्पेस जहां पे जो फिलॉसफी से हम चल रहे हैं वो उसको हम फिट कर सकते हैं. Right. So since 2021 when you took your first professional session, and I know that आपने over 100 sessions अब तक ले चुके हो आप. Right. Out of those 100 sessions, I'm sure there must be some memorable moments that you had. Can you share a couple of them? Okay, so I will do that in two parts. So the first one was again working with a school, with teachers. So session चल रहा था, and while we were winding up the session, so Zoom पे ही था, तो आपको ना दिख जाता है कि सबके expression and all. So there was one participant, so she was getting a bit emotional, और वो ना दिख जाता है आपको कि so obviously you do not call out such things in front of everybody, but I left her a message that I hope you're okay, and I hope this session benefited you and all of that. So she sent me a mail afterwards saying that it was an eye opener, and can we talk? And this was immediately after the session. So I said, why not? So she called me up and she was so emotional.
she said one thing which struck me that आज मुझे realize हुआ कि मेरा पैसा मेरा है. And you know that is a very big thing coming from somebody who earns. Because maybe she was not able to take those decisions for herself या parents लेते होंगे या spouse जो भी. That is a different thing altogether. But वो जो realization हुई ना कि यार मैं कमा रही हूँ, ये मेरा पैसा है. ठीक है, I have responsibilities towards students and मतलब अपने बच्चे, family, खर्चे सब कुछ. But it is my money at some level. So what am I doing for myself? मैं अपने लिए कुछ इन्वेस्ट कर रही हूँ या अपने रिटायरमेंट का सोच रही हूँ या कुछ. So that sort of realization made me think कि बहुत women ऐसे हैं जो कमा रही हैं and they are earning very well. They are very successful in life. They are very smart, outgoing, everything. But ये एक realization कि ये मेरी फैमिली के लिए तो है ही, बट मेरा भी है. That was a very big takeaway that was there for me. And वो मैंने हर सेशन में आगे उस एलिमेंट को इंक्लूड किया है कि आपका रिटायरमेंट हो, आपकी अपनी जरूरतें हो, उनको बैकफुट पे नहीं रखना है. उनको भी उतना ही, बिकॉज हम सिर्फ अपनी फैमिली, थोड़ा सेल्फिश साउंड करेगा मे बी, बट इट इज नॉट एक्चुअली. हम अगर अपना ख्याल रखेंगे, एंड दैट इज हम मतलब विमेन, दैट विल enable you to be better at your job, be better with your family, be more confident. So it has a host of benefits. So that was one such incident which actually made me think कि शायद हम जो कर रहे हैं, हम जितना सोच रहे हैं उससे बड़ी चीज है. So that was one. And the second one is एक प्राइमरी स्कूल में गए थे हम. दिस वाज इन बुलंदशहर. There's a place called Khurja in Bulandshahr, and we went to a very small school, village school, and we took a session there for children. ठीक है, और हमने एक ग्रेड 3 और 4 के बच्चे थे, तो हम उनसे एक कॉन्वर्सेशन के लिए गए थे बेसिकली ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस. एंड क्योंकि आप हर बच्चे से पूछो क्या बोलता है, क्या बनना है, आर्मी मैन, टीचर, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर. लेकिन शायद 100 में एक बच्चा मिलेगा जो बोलेगा मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है या मुझे बिजनेसमैन बनना है. कोई नहीं बोलेगा. जबकि उनको पूरे दिन न्यूज में अंबानी, अदानी जैसे रिच लोगों के नाम दिखते हैं, बट कोई नहीं बोलेगा. ठीक है, दैट इज, यू गो टू एनी स्कूल, यही है. सो वी वर जस्ट टॉकिंग टू देम अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस क्या होता है. सो हमने उनके दिमाग में एक आइडिया छोटा सा प्लांट किया था कि अगर आपको अपने गांव में कुछ बिजनेस करना हो, आपके गांव के पास एक हाईवे जाता है, आप क्या करोगे. सो मेनी आइडियाज केम. और ये छोटे बच्चे हैं ग्रेड 3 और 4 के. सो सम ऑफ देम सेड कि हम वहां पे पानी का काम कर सकते हैं बिकॉज पीपल विल बी थर्स्टी व्हेन ट्रैवलिंग, या दे नीड वाटर. सो वो डिस्कशन करते करते हमने कुछ उनको लीड भी नहीं किया, एंड इट वेंट टू अ पॉइंट जहां पे कुछ बच्चे इस लेवल पे चले गए कि हम रेस्टोरेंट खोलेंगे. हम एक जो एंटरप्रेन्योर में होता है ना कि यू स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग एंड देन यू कीप एडिंग थिंग्स एंड यू डू इट विद अ सर्टेन लॉजिक. अगर मैंने पहले पेरेंट के लिए सेशन स्टार्ट किया, देन आई वेंट टू विमेन, या देयर इज अ सर्टेन थॉट बिहाइंड इट. उन बच्चों में वो थॉट ऑलरेडी है, और ये ग्रेड 3 और 4 के सपोजिटली छोटे स्कूल के बच्चे हैं जिनको उतना एंटरप्रेन्योरशिप का एक्सपोजर नहीं है, इंटरनेट का एक्सपोजर नहीं है, स्टार्टअप्स का वैसा एक्सपोजर नहीं है. अगर कोई नोएडा दिल्ली का बच्चा बोलेगा आई अंडरस्टैंड. ये छोटी सी जगह के बच्चे हैं, दे हैड सच ब्रिलियंट आइडियाज. हमने उनसे लास्ट में एज अ टेक अवे वी टोल्ड देम टू फिल एक शीट दी थी कि ओके राइट योर फाइनल बिजनेस आइडिया कि अगर आपको करना पड़े. So you won't believe, there was one girl, उसने उसमें अपने रेस्टोरेंट का मेन्यू लिखा है that I'll make a restaurant. उसका थॉट प्रोसेस कहां तक गया कि हम रेस्टोरेंट सोचेंगे तो हम बहुत चीजें
वो मेन्यू उसने बना दिया कि हम कढ़ाई पनीर रखेंगे, हम दाल मखनी रखेंगे, हम नान रखेंगे, रोटी, एंड इट वाज अ प्रॉपर मेन्यू विद रेट. दैट मतलब ये कहाँ के बच्चे हैं यार, कैसे कहाँ से आ रहे हैं बच्चे. सो ये मतलब इट इज अ, आई थिंक इट इज अ गिफ्ट जो इंडिया में है, जिसके कारण शायद हम ग्लोबली इतना आगे जा रहे हैं कि यू नो इवन एवरीबडी इज वेरी इनटू इट. मतलब वो एक भूख है सक्सेस की एंड कुछ अच्छा करने की, एंड दिमाग है भाई, इंडिया में दिमाग की कमी नहीं है. सो दैट वाज अ शॉक. एंड वो तो आई वाज स्पीचलेस कि वो टेक अवेज मेरे पास अभी भी है, सारी शीट्स, देयर वाज 40 स्टूडेंट्स, एंड अभी भी वो मेरे सामने आती है, मैं देखता हूँ तो आई स्टिल गेट सरप्राइज्ड. वहां से हमने बच्चों के लिए वैसे सेशन लेना और शुरू किए. तो हमने उस 1 घंटे के सेशन में बच्चे को एक नॉर्मल पानी या जरूरत से लेके हम उसको कहां तक ले जा सके. दैट वाज अमेजिंग. एंड इवन मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे इसका एक आर्टिकल भी है. सो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग एक्सपीरियंस. या सो थ्रूआउट आवर कॉन्वर्सेशन एक चीज़ तो क्लियर है कि इंडिया के अंदर करंटली वो कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है दैट बचपन से ही उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाए, राइट. सो कुछ की टिप्स आई वांट यू टू गिव टू आवर ऑडियंस that they should have in their mind. I'm talking about the parents. So what parents can teach to their kids right from their toddler age, till the time they grow, start learning, and then ultimately start earning. So there are 2 or 3 things जो मैंने बहुत prevalent देखा है, especially in our sort of society. हमारे यहाँ traditionally men are seen as the financial करता धरता. ठीक है, even though women are earning now mostly, but manage करने के लिए men की तरफ देखा जाता है. So एक सिंपल सी चीज जो मैं हर पेरेंट को बोलता हूँ, ये कई बार हो जाता है हमसे, इट इज नॉट आस्क्ड फॉर, बट अगर एक बच्चा अपनी मम्मी, एक बच्चा, एंड ये रिसर्च में है, हार्वर्ड की रिसर्च में, कि बच्चों के जितने फाइनेंशियल क्वेश्चंस होते हैं दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स देयर मदर फर्स्ट. ओके, सो वो ना अगर कोई भी फाइनेंशियल क्वेश्चन अपनी मम्मी से पूछता है, सो इट इज अ वेरी कॉमन रिफ्रेन कि मम्मी बोलती है जाओ अपने पापा से पूछो. इट इज अ वेरी कॉमन थिंग. ये होते होते ना क्या होता है, बच्चे को ये रियलाइजेशन होने लगती है कि द पावर सेंटर और द फाइनेंशियल सेंटर इज माय फादर, व्हिच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि वहां पे उसके अंदर वो इनइक्वालिटी वाली चीज आ गई. सो स्पेशली टू मदर्स आई से दिस कि अगर आपका बच्चा कोई फाइनेंशियल क्वेरी के साथ है, आपको नहीं भी पता है, आप उसे सिंपली बोलो कि आई डोंट नो, बट आई विल फाइंड आउट द आंसर एंड गेट बैक टू यू. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं है, देन गेट बैक टू द चाइल्ड. सो this is one very common thing that I've seen in many households. Many parents have told this to me. So this is one of those simple hacks that simple habit to week. आपको कुछ 1 घंटा बच्चे को साइड में ले जाके ज्ञान नहीं देना, वो सब करना ही नहीं है. So this is one. The second thing is कि पेरेंट्स में एक परसेप्शन होता है कि बच्चे अभी क्या करेंगे फाइनेंस के बारे में सीख के, बड़े होंगे सीख जाएंगे. So a lot of parents are very hesitant for this. But यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड की स्टडी ये बोलती है कि बाय द एज ऑफ 7 किसी भी बच्चे में उसकी फाइनेंशियल हैबिट सेट हो जाती है. सो 7 की एज के पहले आप उनके अंदर ये चीजें, हैबिट्स अगर डाल दोगे तो दे विल टेक रूट्स एंड दे विल बिकम देयर सेकंड नेचर. तो पेरेंट ये रियलाइज नहीं करते हैं जनरली, दे थिंक अरे ही और शी इज टू स्मॉल, थोड़ा और बड़ा होगा तब हम पैसे की बात करेंगे. सो अ लॉट ऑफ पेरेंट्स आई नो जो बच्चे को अलाउंस देने में हिचकिचाते हैं, दे से कि नहीं इसको और बड़ा होने दो तब इसको पैसा. आई रिफ्यूज टू बिलीव. अगर आपको उसकी हैबिट्स डेवलप करनी है, आपको उससे कम्युनिकेट ठीक से करना है,
और आपको उसके हाथ में पैसे पकड़ाने हैं, आप 1 रुपया पकड़ाओ, 5 पकड़ाओ, 10 पकड़ाओ, वो एक अलग डिस्कशन है, बट आपको देना पड़ेगा उस बच्चे को। आपको वो पैसा देके उसको गाइड करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास 20 रुपीज है, तो 10-10 के नोट है, आई विल स्पेंड 10 रुपीज एंड आई विल सेव 10 रुपीज। ये आपको गाइड करना है, बट अगर आप बच्चे के हाथ में पैसा नहीं दोगे ना, और आप उसको बोलते रहोगे कि अरे बेटा तुम्हें सेव करना है, तुम्हें कोई काम नहीं है। सो दैट इज द सेकेंड टिप। एंड द थर्ड वन इज अपने बच्चे का ना भरोसा मत तोड़ो, एंड दैट टेक्स अ लॉट ऑफ फॉर्म्स। सो इसका एक एग्जांपल देता हूं। एक पेरेंट और बच्चा एक स्टोर में गया, ठीक है, बच्चे को एक चॉकलेट चाहिए, तो पेरेंट क्या बोलता है कई बार, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बाद में दिलाऊंगा या दिलाऊंगी, वेरी कॉमन थिंग हमारे यहाँ। और उसके बाद वही पेरेंट 10 तरह के सामान लेके चेकआउट पे जाके पैसे दे रहे हैं। अब वो बच्चे को तो दिख रहा है कि यार मुझे 10 रुपए की चॉकलेट के लिए मना कर दिया, यहाँ तो मम्मी इतना पैसा दे रही है ये सामान खरीदने। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ नॉट हाउ टू नॉट ब्रीच योर किड्स ट्रस्ट। अब इस सिचुएशन में पेरेंट क्या करे इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हो कि बच्चे को नहीं दिलाना है, तो यू कैन, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू इट। आप उसको ये बोल सकते हो कि सी, आप हफ्ते में इतना खाओगे तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, विच विल लीड टू अ विजिट टू द डेंटिस्ट या कुछ वैसा। आप वैसा नहीं तो आप उसको सीधा बोलो कि यू गेट योर पॉकेट मनी और अलाउंस, you save from that, save 1 rupee every day for 10 days and after 10 days you can have this chocolate. So इससे क्या होगा, पहले तो 10 days का गैप हो गया बच्चे के उस हैबिट में। सेकेंड, a very important concept called delayed gratification, जो शायद एडल्ट्स को भी सीखने की जरूरत है कि आज मेरे पास 10 रुपीज है, अगर मैं आज खर्च ना करूं so I can save 10 rupees every day and then I can take something bigger for 100 rupees after a while. तो ये हैबिट छोटे से डालोगे तो बच्चे को बड़े होके दे विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल स्पेंडर। उनको वो स्पेंडिंग का तरीका पता होगा। जैसे आजकल होता है ना, अमेज़न पे जाके लोग पैसा फूंक देते हैं, क्यों पता ही नहीं चलता, आप यूपीआई डालोगे आपके हाथ से तो पैसा गया नहीं है। सो these things can be controlled to a very big extent. Right, I was actually coming to that only. So with the new age payment methods in, अब यूपीआई के थ्रू एक्चुअली में पता नहीं लगता कि आपके पॉकेट से कितना पैसा जा रहा है। सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू एवरीबॉडी टू मैनेज योर स्पेंड्स एंड मोस्टली द इम्पल्स शॉपिंग? बिकॉज इन द करंट एज ऑफ मोबाइल फोन एंड इंटरनेट, impulse shopping has increased exponentially. So how do you manage all of that? What advice would you give? हिमांशु, 2 things. सबसे पहले मैं एक छोटी सी रिसर्च के बारे में बताऊंगा, जहां पे कुछ लोगों को इकट्ठा किया यूएस में, उनको 2 ग्रुप्स में बांटा और उनको कहा कि आपको एक आइटम है, इस पे बिड करना है, ठीक है, कि आपको कितने पैसे में चाहिए। एक ग्रुप को सिर्फ कैश दिया और एक ग्रुप को बोला कि आप क्रेडिट कार्ड या प्लास्टिक मनी यूज कर सकते हो। द शॉकिंग रिजल्ट ऑफ दैट वाज कि जो बिडिंग हुई उसमें कैश वालों ने 30% कम बिड किया फ्रॉम पीपल हु वर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। एंड द रीजन फॉर दैट इज, MRIs में ये देखा गया, जो हम मेडिकली करते हैं, कि पार्टिंग विद कैश एक्टिवेट्स द पेन सेंटर ऑफ योर ब्रेन। तो अगर आपके पास कैश है और आप कैश खर्च करोगे ना, आपको ज्यादा तकलीफ होगी देने में, तो आप कम खर्च करोगे। लेकिन आज के दिन जब यूपीआई और क्रेडिट कार्ड एंड ये सारा जमाना है, तो होता क्या है, हमारे अकाउंट से तो पैसा जा रहा है, हम जाते हुए देख नहीं रहे, हम दे नहीं रहे, तो हमें वो पेन फील नहीं होता है। दैट इज व्हाई वी स्पेंड अ लॉट मोर देन वी इंटेंड टू इवन। सो एक बहुत ही काउंटर इंटुइटिव सजेशन रहेगा मेरा, विच नो फाइनेंशियल पर्सन विल टेल यू आज के दिन, बट आई से दैट कि जहां भी पॉसिबल हो ना, यूज कैश। एवरीबडी विल टेल यू द ऑपोजिट
यूपीआई करो, ये करो. मैं ठीक है, अब कन्वीनियंट है, गुड, बट wherever possible, even though in a small way, use cash. This is one. Second, एक छोटी सी चीज जिसने मुझे बहुत हेल्प की है. बिफोर बाइंग एनीथिंग, एंड आई हैव मेड दिस अ प्रैक्टिस, कि अमेजोन पे जब हम कार्ट पे पहुंच जाते हैं, चेकआउट करने ही वाले होते हैं, जस्ट क्लोज योर आइज फॉर 2 minutes, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड आस्क योरसेल्फ, डू आई रियली नीड दिस? बस. एंड आई हैव हैड पीपल who have told me that their online bills went down 30% by this one simple trick. And the third thing, which is again very simple, but मैं सबको recommend करता हूँ, कि आपका जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट होता है ना, तो मोस्टली क्या होता है, वो ईमेल पे आता है एंड इट इज अनरेड, लोग खोलते नहीं है. ठीक है, आप हर महीने उसको खोलो, और हर महीने एक सिंपल अपने मोबाइल पे कैलकुलेटर खोल के जस्ट सी हाउ मच यू स्पेंड. क्योंकि हम वो 100, 200, 250 रुपए करते हैं, हमें पता नहीं चलता है, बट उस स्टेटमेंट में जब आप देखोगे ना और ऐड करोगे, तब आपको लगता है झटका कि वो शिट, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 30,000, जो भी. सो दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि यू नो ये बहुत ज्यादा है, दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल. एंड देन आपको जब रियलाइजेशन होगा, यू योरसेल्फ विल आल्सो गेट अवेयर कि आई विल हैव टू कट डाउन. So that mindful spending वाली चीज वहां से भी आती है. So ये 2-3 ये है तो बहुत चीजें. There is a 24-hour rule कि आप कोई बड़ा परचेस कर रहे हो तो 24 hours को कार्ट में रहने दो, revisit it the next day and see whether you want it. So all the rules are simple, and उन सब का फाउंडेशन वही है कि भैया खुद को शांत करो, वो इम्पल्स से बाहर निकलो, एंड देन ब्रॉडर पिक्चर. राइट. ओके, सो आई रिमेंबर हमारी प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस में भी ये टॉपिक निकल के आया था, व्हेन आई वाज आस्किंग यू, in fact not asking, I was telling you that if all of the knowledge that you gave me at that time, if I knew it before I started my career as a professional, मैं शायद कहीं किसी और लेवल पे होता in terms of my financial wealth. So कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है? See, कॉलेज एक ऐसा टाइम है ना जहाँ पे यू आर इन बिटवीन वर्ल्ड्स. देयर इज वन वर्ल्ड व्हिच इज स्कूल, जहाँ पे यू आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स फॉर ऑल योर नीड्स, एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट यू विल टेक इज completely independent. When you start earning, you'll do everything for yourself. So कॉलेज का टाइम एक ऐसा होता है जहाँ पे आप अपने माइंडसेट को ट्यून कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, मेरे फाइनेंशियल एस्पिरेशंस क्या हैं, और डे वन से, मतलब जब मुझे सैलरी मिलेगी, माय फर्स्ट सैलरी, मैं कैसे मैनेज करूं अपने पैसों को. सो दैट पिक्चर हैज टू बी क्लियर. एक ये जनरल होता है, जब मैंने भी जॉब स्टार्ट किया था, टू एन एक्सटेंट आई वाज गिल्टी ऑफ इट, कि व्हेन यू गेट योर फर्स्ट सैलरी you think of yourself like a king, that पैसा आने लगा, मेरा पैसा and all, and you start spending it, and आपको पता नहीं चलेगा 6 महीने, साल भर, 1.5 साल हो गए जहां पे आपकी सेविंग्स नहीं है, because you're spending it. अभी तो यंग लाइफ है, you don't have any family responsibility, but जो एक्चुअल में आगे जाते हैं वो लोग होते हैं जो उस टाइम से ही उस प्लानिंग को सॉर्टेड रखते हैं. एंड प्लानिंग इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स. ऐसा नहीं है कि आपको ये कैलकुलेशन, कुछ भी आप एक लिमिट बना लो, मुझे इतना सेव करके इन्वेस्ट करना है, मुझे इतना स्पेंड करना है, मेरा बजट ये है, जो भी. सो दैट इज वन थिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल लैक, एंड उसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, क्योंकि आप अपने फर्स्ट पेचेक से अगर वो कर रहे हो तो वो इतना आसान नहीं होता. बट अगर आप स्टार्टिंग से ही सेव करने लग जाओ और इन्वेस्ट करने लग जाओ ना, तो जिसको हम कहते हैं ना द पावर ऑफ कंपाउंडिंग या मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, दैट टेक्स प्लेस. एंड देन 10-20 years डाउन द लाइन आपका कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा दैट आपके पीयर्स से आप बहुत आगे रहोगे फाइनेंशियली. सो दैट इज वन. एंड द सेकेंड थिंग इज बीइंग मल्टी स्किल्ड, एंड that is
the need of the hour. You आज के दिन the careers are not very limited to conventional spheres कि आपको डॉक्टर लॉयर. So आप जिस भी चीज में स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, maximize it to a level where you get very good at it. तो हम एक ये इंजीनियरिंग के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर इज वेरी लेस, क्योंकि उनको वो पता नहीं. ठीक है, कॉलेज जो सिखा रहा है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हो सो दैट यू आर मोर एक्सेप्टेड इन द इंडस्ट्री, यू गेट अ बेटर पैकेज, यू गेट अ बेटर इनकम. सो ये दोनों चीजें साथ में मिलके, एंड अ गुड वे ऑफ डूइंग दैट इज ऑल्सो आप कॉलेज के टाइम पे ही टेक अ पार्ट टाइम जॉब, डू सम फ्रीलांसिंग, टेक एन इंटर्नशिप. बहुत तरीके आज के दिन इतने पोर्टल्स हैं जहां पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती है. लाइक कंपनीज लाइक माइन, वी सर्च फॉर गुड इंटर्न्स. सो उनको फिर वहां पे एक एक्सपोजर मिलता है कि हाउ डज द रियल वर्ल्ड वर्क एंड इंडस्ट्री कैसे चल रही है. दे गेट एसेंशियल स्किल्स, दे गेट दैट कॉन्फिडेंस कि ओके वी बिलोंग टू दिस, या हम कर लेंगे. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स जो एक कॉलेज स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए. Okay, now when it comes to managing your finance, a major aspect of this is investment. So not just whatever you're earning, how do you grow your money, right? And उसके अंदर किसी से भी आप बात करोगे, हर कोई ये बोलता है don't put all of your eggs in one basket. आप different verticals में invest करो. सुनने में बहुत सिंपल है, आसान है, बट करने में इट्स नॉट दैट ईजी, बिकॉज आपको मल्टीपल वर्टिकल सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करें क्या हो, वहाँ इन्वेस्ट करें क्या हो, एंड जॉब के साथ में कैसे मैनेज करें इसे. सो वहाँ पे मुझ जैसे लोग आते हैं जो सिंप्लीफाई कर देते हैं लोगों के लिए, बट सी एवरीथिंग हैज अ सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इक्विटी या स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो बट यू हैव अ फुल टाइम जॉब, तो नेचुरली आप ट्रेडिंग टाइम पे देख नहीं सकते हो, आप ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो. सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव? म्यूचुअल फंड्स. कि लेट अ फंड मैनेजर मैनेज इट फॉर यू. आप अपना एक एसआईपी कर लो या लमसम, जो भी आपको सूट करता है. सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. एंड बाकी जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक इक्विटी ऐसा है जिसमें आपको बहुत डायनेमिक रहना पड़ेगा इन केस यू डूइंग इट योरसेल्फ. बट बाकी जितनी चीजें हैं दोज आर वेरी पैसिव. आपको फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना है, बीट एफडीज, ट्रेजरी बिल्स, बहुत तरह की चीजें, बॉन्ड्स होते हैं. तो वहां पे आप एक बार करते हो एंड देन यू जस्ट हैव टू ओकेजनली ट्रैक इट. आपको हर दिन उसकी वैल्यू नहीं देखनी. सिमिलरली व्हेन यू इन्वेस्ट इन गोल्ड, व्हिच इज अनदर वे ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, वहां पे आपने गोल्ड बॉन्ड्स खरीदे, वहां पे आपने गोल्ड खरीदा, ईटीएफ्स खरीदे, जो भी फिजिकल गोल्ड खरीदा. सो दे डू नॉट नीड मैनेजमेंट एज सच. दैट एक बार का डिसीजन है आपने जब लिया. सो इट इज ओनली इन केस ऑफ इक्विटीज वेयर दिस प्रॉब्लम अराइजेस कि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है और उसमें हम मैनेज नहीं कर सकते. सो देन देयर इज नो अदर ऑप्शन, देन यू विल हैव टू टेक हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड या फिर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की हेल्प लेनी पड़ेगी. दैट इज नीडेड. But if you want to do it yourself, especially stock market का, थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा. सी वो थोड़ा ट्रैक करने के लिए. एंड सी इफ यू डूइंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, विच आई रिकमेंड, कि आप ट्रेडिंग मत करो, आप इन्वेस्टिंग करो. ट्रेडिंग इज तुरंत खरीदना बेचना, इन्वेस्टिंग इज बीइंग इन इट फॉर द लॉन्ग टर्म. यू आर इन्वेस्टिंग. सो वो आप काम के साथ भी दिन में अगर बीच में खुद को 15-20 मिनट्स दो, थोड़ा पोर्टफोलियो ट्रैक, यू कैन डू इट. एनीबडी कैन डू इट. बट अगेन यू हैव टू जंप इन इट विद सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज. एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल टेक्निकल चार्ट्स आपको सारे आने चाहिए. मतलब दैट इज, वो कोई उतनी जरूरत नहीं है. वो सारी एनालिसिस आपको ऑनलाइन मिलती है आजकल. सो आप खुद कैलकुलेट करने बैठ जाओ, वो सब चीजें नहीं करनी है, वो सब मिलता है. बट अगर आप एक बेसिक फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखोगे, सो इवन इक्विटी मार्केट में यू कैन डू वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग. एंड एक सर्वे हुआ था वेयर
IIT ने बैक किया था उसको, और दे एनालाइज लास्ट 15 years का इक्विटी मार्केट्स का डेटा, एंड दे केम टू दिस कंक्लूजन कि अगर आपने 7 years से ज्यादा इन्वेस्ट किया किसी भी स्टॉक में, योर चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इज 0.01%. So even if we take it as a thumb rule कि भाई अगर एक अच्छा बिजनेस है जो हम एक ड्यू डिलिजेंस कर ले and we invest in it for 7 years, money will grow definitely, and it will probably beat जो fixed deposits या fixed income instruments. Right. So currently you basically give training to parents, kids, women for women empowerment, right? And what's next now? Apart from all of this, I'm sure you must have thought, okay, we'll go next to this level, we'll add this vertical in. So what is next for you? So there are two things. वैसे तो ये तीनों अपने आप में इतने वास्ट हैं कि there is so much to do and so less time. So अभी we are focusing on all these three verticals, but going forward we would like to work more with NGOs. And as a personal initiative, I'll just share this with your viewers because so that उनको पता हो and they can reach out for this. एक NGO के साथ मैं बात कर रहा था regarding a session. So they had something very startling to say. तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आप लोग ट्रेनिंग तो कर दो, लेकिन ये जितने लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं ना, ये बहुत महंगे होते हैं and we cannot afford it. So वो शॉक सा लगा. तो दैट इज वाई एक जो मैं शायद नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँ, दैट फॉर NGOs एंड फॉर सच ऑर्गेनाइजेशंस जो शायद उतना नहीं खर्च कर सकती हैं बट दे स्टिल वांट financial training for their beneficiaries, be it women, entrepreneurs, बच्चे. So I've decided that probably from next month, I will have 2 such sessions which I'll give out for free, be it online or offline, and which is for such organizations जो शायद उतना afford नहीं कर सकती हैं या जो इतने ऐसी जगहों पे काम कर रही हैं जहां पे शायद they do not have that much to spare. So as a way of giving back to the society and doing my bit, so from next month I'll be doing this, and every month I'll take 2 such sessions which have no financial commitments at all, and will be my way of furthering this cause. That's amazing. So even I will be posting about it soon on my website, on my LinkedIn profile, and any NGO people can they can contact me, they can DM me, and then we can set up a date which is convenient mutually. Yeah, talking about your contact details, I'll put all of them in the caption below so that anybody who wants to reach out to you can directly contact you. Thank you so very much. Taking time on a weekend, I know what sort of schedule you follow. Thank you so much for giving time to the show, and I hope that we'll have you back on the show with much more such conversation, going even further deeper in these topics so that people get to learn from you more. Thank you so much for inviting me. It was just an amazing experience, if I can call it that. And we have interacted before this quite a lot, so just extending that to the platform where more people can just witness it. It was a great one, and thank you so much. I hope your viewers will have some sort of takeaways from it, and even if they implement just 1% of or one thing from what we talked about, that will be success in my book. Amazing. Thank you so much. Thank you very much.